My dear friends, today is the birthday of my late aunt, Miss Angel Dinakaran. मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरी दिवंगत बुआ मिस एंजल दिनाकरण का जन्मदिन है। We remember how her life ended so early because of a car accident. हमें याद है कि कैसे कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। But that was the beginning of all our ministry and the beginning of Karunya University. लेकिन यही हमारी पूरी सेवा और कारुण्या विश्वविद्यालय की शुरुआत थी। So we remember her fondly on this day इसीलिए हम आज उन्हें स्नेहपूर्वक याद करते and हैं pray for our ministries even on this special day. और इस विशेष दिन पर अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। Today, God promises us, as per 2 Corinthians 3:17, it says, आज परमेश्वर हमसे दूसरा कुरिन्थियों 3:17 के अनुसार प्रतिज्ञा करते हैं, "Now the Lord is the Spirit, प्रभु तो आत्मा है, and where the Spirit of the Lord is, और जहाँ प्रभु का आत्मा है there is freedom." वहाँ स्वतंत्रता है। What is this freedom that God's Spirit brings? यह स्वतंत्रता क्या है जो परमेश्वर का आत्मा हमें देता है? In our hearts, sin will always put a guilt within us and say, "No, you are not worthy for the blessing of God." हमारे हृदय में पाप हमेशा हमारे भीतर एक अपराध बोध पैदा करेगा और कहेगा, नहीं, तुम परमेश्वर की आशीष के योग्य नहीं हो। How can you be blessed? तुम कैसे आशीष पा सकते Look हो? at the things you have done in your life. अपने जीवन में जो तुमने किया है उसे देखो। You have no right to even go to God, तुम्हें परमेश्वर के पास जाने का कोई अधिकार नहीं no है, right to pray. प्रार्थना करने का अधिकार You नहीं है। can't be blessed by God. तुम परमेश्वर से आशीष नहीं पा And सकते it makes us keep ourselves in sin. और यह हमें पाप में ही रहने पर मजबूर करता है। This is the life for you. तुम्हारे लिए यही जीवन है, There's no hope for you. तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं। So we are bound by the guilt of sin. इसलिए हम पाप के अपराध बोझ से बंधे रहते But हैं। this is what the Holy Spirit does. लेकिन पवित्र आत्मा यह करता है कि He frees us from this guilt. वह हमें इस दोष भाव से मुक्त करता And है He says, "No, you are eligible to be freed by the Lord." और कहता है, नहीं, तुम प्रभु द्वारा मुक्त होने के योग्य हो। Because remember what Jesus did for you. क्योंकि याद रखो कि यीशु ने तुम्हारे लिए जो किया Come है, to Him उसके पास आओ and He will free you from your sin और वह तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा and देगा make you enter into His blessings. और तुम्हें अपनी आशीषों में प्रवेश कराएगा। There were two little boys whom my grandfather and father have shared the story about. मेरे दादाजी और पिताजी ने दो छोटे लड़कों के बारे में यह कहानी सुनाई। Let's call them Jim and Henry. आइए हम उन्हें जिम और हेनरी कहें। One day when Jim was playing with the chickens and hens in the house, एक दिन जिम घर पर ही मुर्गे मुर्गियों के साथ खेल रहा था he was throwing stones here and there. और वह इधर उधर पत्थरों को फेंक रहा था। One stone went and hit a hen and it died. एक पत्थर एक मुर्गी को लगा और वह मर गई। This was a very good hen which was producing eggs for them. यह एक बहुत ही अच्छी मुर्गी थी जो उनके लिए अंडे दिया करती। And Henry, his older brother, saw this. और उसके बड़े भाई हेनरी ने यह देखा And he said, "Jim, what if dad and mom find out about this?" और उसने कहा, जिम, अगर मम्मी पापा को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? Jim said, "Please, Henry, don't tell them." जिम ने कहा, हेनरी, कृपया करके उन्हें मत बताना। Henry said, okay, then you have to do a few things for me. हेनरी ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। From that day, whatever the father and mother would give as a job to Henry to do, उस दिन से उनके मम्मी पापा हेनरी को जो भी काम दिया करते, he would ask Jim to do it, saying, "Hey Jim, this is your responsibility now." वह काम वह जिम से करवा लेता और कहता, अरे जिम, अब ये तुम्हारी जवाबदारी And है। every day Jim was taking all of the work that Henry was supposed to do. हर दिन जिम हेनरी के वो सारे काम किया करता जो हेनरी को करने थे। One day he got frustrated. एक दिन जिम निराश और परेशान हो And he गया went to his father and said all that happened. और वह अपने पिता के पास गया और उन्हें वो सब बात बता दिया जो हुआ And he था। said to his father, "Please forgive me." और उसने अपने पिता से कहा, कृपया मुझे क्षमा कर His दीजिए। father also said, "This boy has learnt his lesson, so we forgive you." उसके पिता ने भी कहा, इस लड़के ने सबक सीख लिया है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। The next time Henry called to Jim and said, "Hey Jim, this is what dad is asking me to do. You do it." अगली बार हेनरी ने जिम को बुलाया और कहा, अरे जिम, पिता मुझसे यह करने को कह रहे हैं, तुम ही इसे करो।
When his father heard it, he gave a big knock on his head. जब उसके पिता ने यह सुना तो उन्होंने उसके सिर पर जोर से थपथपाया। Henry was in trouble. हेनरी तो परेशानी में पड़ He गया। said, "You have not told this to me and you're taking advantage of your brother. उन्होंने कहा, तुमने मुझे ये बात नहीं बताई और तुम अपने भाई का फायदा उठा रहे हो। Wait for the punishment I'm going to give you." उस सजा का इंतजार करो जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। You see, my friends, आपने देखा मेरे दोस्तों, if we keep all this sin and the guilt of sin within our heart, यदि हम ये सारे पाप और पाप का अपराध बोध अपने दिल में ही रखते हैं, we drown in the punishment of sin. तो हम पाप की सजा में डूब जाते हैं। But the Holy Spirit is here to release us even now, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अभी भी छुड़ाने के लिए मौजूद to है, live a life freely, to be blessed by God. परमेश्वर की आशीषें पाते हुए आजादी से जीवन जीने के Shall लिए। we ask Him for His help? आइए, क्या हम उनसे मदद Right मांगे now, Lord, इसी समय? प्रभु, please help your children who are stuck by the curses of sin. कृपया अपने बच्चों की मदद करें जो पाप के शापों में फंसे हुए हैं। Holy Spirit, help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। Lord, fill our hearts. प्रभु, हमारे हृदय भर दीजिए, Forgive us. हमें क्षमा We करिए। come to you, Lord. हम आपके पास आते हैं Even प्रभु। now, as your children, we come to you begging you for your forgiveness. आज भी आपके बच्चे होने के नाते हम आपसे क्षमा की याचना करते हैं प्रभु। Cleanse your children's hearts with your blood, Lord. अपने लहू के द्वारा अपने बच्चों के मनों को शुद्ध कर दीजिए। Thank you for forgiving them, उन्हें क्षमा करने के लिए धन्यवाद। showing them mercy, उन पर दया कीजिए, giving them a brand new life, उन्हें एक नया जीवन दीजिए। filled with your blessing, अपनी आशीषों से उन्हें भर the दीजिए। Father's blessing. पिता की आशीषें, As they are your child now, क्योंकि वे आपकी संतान हैं, let them receive your mighty blessing to increase in their life. उन्हें अपने जीवन में उन्नति के लिए आपकी महान आशीषें प्राप्त हों। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My dear friends, I'm excited to invite you to our Jesus Calls Arunachal Pradesh Prayer Festival. मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु बुलाता है अरुणाचल प्रदेश प्रार्थना महोत्सव में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही Some है। of our friends in Arunachal have invited me to speak on these meetings on November 8th and 9th. अरुणाचल प्रदेश में हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे 8 और 9 नवंबर को इन सभाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मेरा नाम नीता थापा है और मेरा 2017 से ये बीचों बीच में हार्निया का गांठ था जो कि बढ़ते ही जा रहा था। तो हम मेडिकल में उसका सर्जरी ये सब के लिए नहीं चाहता था, इसलिए प्रार्थना से रुका हुआ था। बट वो बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका था जिसका वजह से हमको डर भी लगता था। तो आज ब्रदर सैमुअल का प्रार्थना का द्वारा जब हम ऐसा दबा के प्रार्थना को विश्वास से रिसीव किया, हीलिंग मिला। अभी यहाँ छोड़ने से कुछ भी नहीं है, चेक कर सकता है लेडीज भी। यहाँ पे कुछ भी नहीं, खाली हो चुका है ये जगह। It's going to be at 3 p.m. each day. यह प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से होगा। So it's going to happen in Roing, Arunachal Pradesh. ये सभा रोहिंग अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है। You can see this in the flyer and in our website. So please come, and I know we'll richly be rewarded by God's blessings. आप इसे हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आपका स्वागत है, आप जरूर वहाँ आशीष पाएंगे। See you there. तो वहाँ आपसे मिलते हैं।